Good morning, all of you. Right? We need to know the anatomy structures lies in here. And as you know, why this carotid triangle is called carotid triangle? This triangle is named as carotid triangle. Yes, Nikita, Pranjal, very good. Arteries are okay, very good. Then apart from the carotid arteries, various other important. Okay. So first we'll study the boundaries of carotid. This is carotid anterior belly of digastric supplemented by stylohyoid, superior belly of omohyoid and posterior sternocleidomastoid muscle. Clear? देखो, this is anterior part and this anterior part. This part is anteriorly but inferior part. So antero-superiorly, the triangle is bounded by posterior belly of digastric and stylohyoid muscle, and antero-inferiorly it is bounded by this posteriorly it is bounded by anterior border of sternocleidomastoid. Is the PPT visible? So these are the boundaries. ठीक है. Now boundaries से borders नहीं. No. Roof of any triangle, it is formed by skin, and the deep fascia here is investing layer of deep cervical fascia. Right? From skin, superficial fascia, contents of superficial fascia, and this is called investing layer of deep cervical triangle. Let's try to appreciate this diagram. This is mandible, this is thyroid cartilage, this one is cricoid cartilage. ठीक है. Then this gland is thyroid gland. This ये जो ब्लू कलर का लाइट ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, extending from thyroid cartilage up to hyoid brain. This one is thyrohyoid membrane. Thyroid cartilage और hyoid bone के बीच में this membrane is thyrohyoid membrane. Membrane is again nothing but the modification of triangle. Now see this diagram. This is carotid triangle here. This is sternocleidomastoid. This is posterior belly of digastric. This is superior belly of omohyoid. This one is carotid triangle. This thyrohyoid muscle. Thyrohyoid muscle है infrahyoid muscles. तो उसमें हमने एक मसल पढ़ी थी लाइट ब्लू thyrohyoid membrane. राइट. फिर उसके बाद ये दिख रहा है ट्रायंगुलर मसल. This is middle constrictor of pharynx. This triangular, and this one is inferior constrictor of pharynx. Circular muscle cord, it is formed by middle constrictor. It also take part in the formation of floor of digastric triangle. Inferior constrictor. Let me show you one diagram. Now see here, thyroid cartilage, this is hyoid bone, this is thyrohyoid membrane. उसके ऊपर small triangular muscle is middle constrictor muscle of pharynx. अब आ रहा है. Wait for few more seconds. ठीक है, मैं देखती हूँ.
देखिए वैसे यूट्यूब पे लाइव पे करेंगे। यूट्यूब पे भी चल रहा है, वहाँ पे आवाज़ नहीं कट रही है ऐसे कह रहे हैं। हाँ, लाइव चल रहा है, आप देख सकते हो वहाँ पर भी। अभी क्लियर है? अभी कुछ अभी आ रही है आवाज़? Formed by thyroid membrane, middle constrictor, inferior constrictor. This will, no मैम मतलब क्या, पूरा सेंटेंस आप YouTube पे देख सकते हो, वहाँ constrictor we'll study in detail when we'll study the fact. Then we'll move on to the, so we have seen the boundaries, on to the contents of triangle. ठीक है, सो कंटेंट बचेगी, नर्व्स बचेगी, राइट, उसके बाद लिम्फ नोड्स बचेंगे, तो ये सब आते हैं हमारे कंटेंट्स में। तो वेसल्स कौन सी है, पहले आर्टरी देखेंगे, कैरोटिड ट्रायंगल, देन कैरोटिड नर्व्स। सो लास्ट 3 क्रेनियल नर्व्स, दिस आर प्रेजेंट इन दी कैरोटिड ट्रायंगल। कौन सी होगी लास्ट क्रेनियल नर्व? 10th, 11th एंड 12th। वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व, हिपोग्लॉसल नर्व, these are present in the carotid triangle. Then ansa cervicalis, we have seen that ansa cervicalis, in last class we have studied the ansa cervicalis. It is formed by the descending fibers of hypoglossal along with the C1. C1 here is Venn diagram of cervical spinal nerves. C2 and C3 form inferior root. Inferior root joins and form loop of ansa cervicalis. तो ये जो एंड इंफीरियर रूट, ये तीनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे? अंसा सर्वाइकलिस। ठीक है, तो दिस अंसा सर्वाइकलिस इन द एंटीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड शीथ, अंसा सर्वाइकल शीथ। देन सर्वाइकल सिम्पैथेटिक, विच इज कॉलम के साइड में जो पैरावर्टिब्रल गटर्स होते हैं, वहाँ पे होती है सिंपैथेटिक चेन। सर्वाइकल रीजन में जो पार्ट होगा सिंपैथेटिक चेन का, दैट इज सर्वाइकल, राइट। सो इट इज प्रेजेंट पे होता है। और पोस्टीरियरली क्या होगा? अंसा सर्वाइकलिस के पोस्टीरियर वॉल से रिलेटेड क्या होगा? कैरोटिड शीथ, इट इज नथिंग बट दी मॉडिफिकेशन ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। यहाँ पे जो डीप फेशिया होता है उसे क्या कहते हैं? कैरोटिड शीथ। एंड दिस कैरोटिड शीथ, इट आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कंटेंट में क्या क्या आएगा? कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व। ठीक है, वे सब आएंगे कैरोटिड शीथ में। दिस कैरोटिड शीथ एनक्लोजेस दिस स्ट्रक्चर्स, रिमेंबर, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इनसाइड द कैरोटिड शीथ एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब क्या बचता है? सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, ये कौन से एलिमेंट? ठीक है, तो वीनस सिस्टम के साथ साथ हमें क्या क्या मिलेगा? लिम्फ नोड मिलेंगे, लिम्फेटिक्स मिलेंगे। सो हियर दिस सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, दे आर प्रेजेंट along the internal jugular vein. Deep cervical lymph node, they lies along the internal jugular vein. ठीक है, so let's enumerate the contents once again. First, artery, carotid artery, common carotid artery, internal carotid artery, external carotid artery and its 5 branches: carotid sinus and carotid cervicalis and cervical sympathetic lymph node. These are the contents of carotid triangle. Now let's take them one by one. First, common carotid artery. From where this common carotid artery is coming? Now see, this is arch of aorta. This is right side. From left side, this is arch of aorta. On right side, there is a brachiocephalic trunk. Brachio means brachium, that is upper limb, and cephalic is head. So blood supply to the brachium, upper limb, to the head. Head को कौन blood supply कर रहा है यहाँ पे? Head यहाँ पे common carotid artery, which divides into external carotid artery and internal carotid artery. We have seen internal carotid artery does not give any branch in the neck. It supplies the brain. एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी किसे सप्लाई करेगी? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ हेड, नेक सप्लाई कर रहा है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और अपर लिम्ब को कौन सप्लाई कर रहा है? सबक्लेवियन सिफेलिक ट्रंक डिवाइडिंग इनटू राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड
आर्टरी। राइट साइड में ब्रेकियोसेफालिक ट्रंक से और लेफ्ट साइड से आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, नाउ it divides into two branches. We know two branches, external carotid artery. ठीक है, this bifurcation take place at the level of upper border of thyroid cartilage. अब जो लेवल्स मैं बताऊंगी वो आप लिख लो, वो इम्पॉर्टेंट है। बाइफर्केशन कहाँ और बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज C4। ठीक है, C3 वर्टिब्रा एंड C4 वर्टिब्रा, इन दोनों के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ये करस्पॉन्ड होती है विद द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज आर्टरी एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ बाइफर्केशन। दिस डायलेटेशन इज कॉल्ड कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस क्या होता है? इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। क्या हो रहा है यहाँ पे? whenever there is increase in blood pressure, this results in this carotid and body, it is a small oval structure. Carotid body is present behind the bifurcation of common carotid artery. Carotid body, it acts as a chemoreceptor which responds to the blood. This carotid body, it acts as a chemoreceptor which sinus acts as a baroreceptor. ठीक है, some individual shows this carotid sinus is hypersensitive. If such if in such tight knot, what happen? जो slight भी pressure आएगा carotid sinus पे, and the medical term for fainting is syncope. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? carotid sinus होता है, but in some there is a hypersensitivity to this carotid sinus. तो in such individuals, if they are wearing tight collars or tie with tight knot, तो in such condition क्या होगा? Slight pressure over the carotid sinus will create excessive slowing of heart rate. Heart rate कम होगा, less blood supply to the brain, blood supply brain को कम होगा तो क्या होगा? इश्चिमा भी हो सकता है, फेंटिंग होगी, और फेंटिंग को हम मेडिकली क्या कहते हैं? सिनकोप। तो कंटेशन होता है हेड का, तो दैट रिजल्ट्स इन सिनकोप। ठीक है, ठीक है, दिस इज अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। देखो यहाँ पे, दिस वन इज कॉमन आर्टरी, इट इज बाइफर्केटिंग इनटू एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। जस्ट बिफोर द बाइफर्केशन, this carotid artery shows this now this bifurcation, it is taking place at vertebrae. जो carotid cartilage होता है, this now you know that the vertices होती है vertebrae में, तो over the prominent tubercle, ठीक है, जो that is a prominent tubercle, that tubercle is पे compress against this chase neck tubercle, common artery can be compressed. It is a prominent tubercle of the C6 and transverse process of C6. ठीक है, then one more thing we need to know, there is a scale artery होगी, वहाँ पे हम क्या देखते हैं? Arteries are used to monitor pulse. Similarly, common carotid artery is used to monitor the central pulse during the surgical procedures. ठीक है, common carotid artery used to monitor the central pulse during surgery, approximately at the level of upper border of thyroid muscle. ठीक है, along the anterior border of sternocleidomastoid. Smaller portion of this smaller portion of this artery becomes superficial at the level of thyroid, upper border of thyroid cartilage, and it lies beneath the sternocleidomastoid muscle, beneath the anterior border of sternocleidomastoid muscle. So here we can palpate the artery, we can use this artery to monitor the central pulse. आर्टरी पे आए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी। कैरोटरी हैज गॉट 8 branches, amongst which 5 branches are present in the carotid triangle. So which are these 8 branches of external carotid artery? See, there was mnemonic is also given in your book. Some anatomists like freaking out poor medical students. ठीक है, it's not true, but आपके बुक में दिया है some anatomists like freaking out poor medical students. तो इसमें
This S is for superior pharyngeal artery, pharyngeal artery, then L lingual artery, F facial, ठीक है। अब P से आता है posterior maxillary artery and superficial occipital artery, yes, auricular artery, maxillary artery, facial temporal artery. Enumerate the branches of external carotid artery. See in this diagram, this is external carotid artery. This external carotid artery, the first branch of external carotid artery is superior thyroid, which supplies the internal carotid artery and external carotid artery. External carotid artery से आएगी branch superior thyroid artery, runs downward, forward towards the thyroid, it supply thyroid gland. Then यहाँ से देखो बीच में से आ रही है just after the bifurcation of common carotid artery, जहाँ से हमारे external carotid artery शुरू हो रही है वहाँ से एक छोटी सी branch आएगी, that is can you start pharynx. This is a medial branch of external carotid artery. यहाँ से lingual artery, ठीक है, is the tongue. So this artery runs upward, again में डिटेल में होगा, इस क्लास में जितना रिलेटेड है. This lingual artery, it arises from the external carotid artery at hyoid bone के लेवल पे आ रही है हमारी lingual artery. It runs upward, forward towards the tongue. Upward over which muscle? Over hyoglossus. Triangle पढ़ा, submandibular region पढ़ा होगा तब आपने hyoglossus muscle पढ़ी होगी. It is a muscle of tongue. This tongue muscle के ऊपर क्या होती है? Lingual artery run करती है towards the tongue. ठीक है, अब lingual artery face को करेगी तो इसे कहाँ जाना होगा? face की तरफ जाना. face first it winds round the base during the movement of neck and during the movement occurs the face. face पे क्या क्या होता है? diglutition, ठीक है, pharynx का movement होगा, deglutition that is swallowing. तो इन सब मूवमेंट जब होती है फेस में और नेक में, जो मूवमेंट होती है उस वक्त दिस टॉर्सियोसिटी प्रिवेंट्स द एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ फेशियल आर्टरी, दैट इज इट प्रिवेंट्स द ट्रैक्शन ऑफ फेशियल आर्टरी. ठीक है, नाउ सी हियर जस्ट अपोजिट टू द ओरिजिन ऑफ फेशियल आर्टरी देयर इज वन मोर आर्टरी इज अराइजिंग. दिस आर्टरी इज ऑक्सीपिटल आर्टरी. जस्ट अपोजिट टू द ओरिजिन ऑफ फेशियल आर्टरी this artery arising is, yes, very good Shraddha. हाँ, ठीक है. तो occipital artery we have studied with the posterior triangle. Occipital artery यहाँ से निकलेगी, runs upward behind and then enters into the occiput, ठीक है, and supplies the area over here. तो जब ये mastoid process को क्रॉस करती है तो this small portion it is seen in the posterior triangle. occipital artery का ये जो small portion होता है जब ये mastoid process को क्रॉस करके occiput में एंटर करती है वो हमें कहाँ दिखता है? posterior triangle में. ठीक है, occipital के ऊपर होगा auricular, posterior auricular दिख रहा है. ये आपको यहाँ पे एक ओपनिंग दिख रही है, external acoustic meatus. External acoustic meatus behind the neck of mandible. This one is mandible, this is neck of mandible. So behind the neck of mandible, ठीक है, जब artery runs upward, forward, then it runs under the cover of parotid gland, and here at the level of neck of mandible, this divides into maxillary and superficial temporal. ये जो maxillary होती है, it enters into the infratemporal fossa. Superficial, you see again, this one is external carotid artery. External carotid artery at the level of neck of mandible divides into two terminal branches. This one is maxillary temporal fossa and the superficial facial artery. ये तीनों जो आर्टरी निकल गई ये कहाँ? आर्टरी. तो ये जो एंटीरियर एस्पेक्ट lingual and facial. अब ये जो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है ये कहाँ से निकल रही है? मीडियन एस्पेक्ट से निकल रही है, मीडियल एस्पेक्ट से निकल रही है. सो दिस इज मीडियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. दिस ऑक्सीपिटल आर्टरी एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकल रही है. तो दिस आर पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी.
और ये जो मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी थी, ये कहाँ पे थी? दीज आर दी टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड। 3 ब्रांचेस होगी ईयर में। सुपीरियर थायराइड, थायराइड ग्लैंड नीचे होगी, तो नीचे कौन सी आर्टरी होगी? थायराइड आर्टरी। ठीक है। टंग नीचे थायराइड के ऊपर होती है बट फेस के नीचे होती है, तो बीच वाली कौन सी आर्टरी है? लिंगुअल आर्टरी। फेस ऊपर होगा, तीनों में फेस ऊपर होगा, तो सबसे ऊपर कौन सी होगी? फेशियल आर्टरी। ठीक है। देन पोस्टीरियरली भी देखो, ऑक्सीपुट पीछे है तो पहले कौन सी आएगी? ऑक्सीपिटल आर्टरी। अब ये एमसीक्यू याद रखना है, ऑक्सीपिटल लेवल, ऑक्सीपिटल आर्टरी कहाँ से अराइज होती है? अपोजिट टू द ओरिजिन ऑफ फेशियल आर्टरी। ऑक्सीपिटल आर्टरी का ओरिजिन कहाँ से होगा? अपोजिट टू द ओरिजिन ऑफ फेशियल आर्टरी। ठीक है। तो ऑक्सीपुट पीछे है, पहले कौन सी आएगी? ऑक्सीपिटल आर्टरी। देन ऑरिकल आगे है तो उसके ऊपर कौन सी? पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ठीक है। ओके। देन 2 टर्मिनल ब्रांचेस, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड सेकंड इज मैक्सिलरी आर्टरी। सुपरफिशियल टेम्पोरल बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक के ऊपर 3 ब्रांचेस है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। तो ये कैरोटिड ट्रायंगल में आएगी? नहीं आएगी। तो ये जो लोअर 5 ब्रांचेस है, दीज आर दी कंटेंट्स ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। तो ये कौन सी है? लोअर 5 ब्रांचेस। एंटीरियर से आएगी सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल आर्टरी एंड फेशियल आर्टरी। पोस्टीरियर से ऑक्सीपिटल और मीडियल से असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी। ठीक है। तो ये 5 आर्टरीज होती है, 5 ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दिस आर प्रेजेंट इन दी कैरोटिड ट्रायंगल। तो हो गया हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होगी। चलो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पहले हम थोड़ा बेस ऑफ स्कल देख ले। ये क्या है? फोरामेन ऑफ मैग्नम। दिस वन इज जुगुलर फोरामेन, दिस इज बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल में बहुत सारी ओपनिंग्स होती है जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स क्रेनियल कैविटी के अंदर आते हैं और कुछ क्रेनियल कैविटी से बाहर। यस वेरी फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। देन यहाँ पे आएगा जुगुलर फोरामेन और उसके आगे यहाँ पे होता है कैरोटिड कैनाल। दिस इज कैरोटिड से हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विल कमिंग इनटू दी कैरोटिड आर्टरी क्रेनियल कैविटी में कहाँ से एंटर करेगी? थ्रू दी कैरोटिड कैनाल। ठीक है। अब ये डायग्राम समझने की कोशिश करो। सी दिस इज द पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल। ये जो बेस ऑफ स्कल में एक ओपन गैप है, दिस इज कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल के पीछे यहाँ पे क्या था? जुगुलर फोरामेन। ठीक है, जुगुलर फोरामेन। ठीक है। फॉरवर्ड and then enters into the cranial cavity through an opening at the base of skull called carotid canal. तो ये होगी कैरोटिड आर्टरी। कैनाल के पीछे एक ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड जुगुलर फोरामेन। अब जुगुलर फोरामेन से क्या क्या नेक में आ रहा है? क्रेनियल कैविटी से क्या स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं? दिस वन इज इंटरनल जुगुलर, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व एंड स्पाइनल एक्सिस। ठीक है। 9th, 10th and 11th this cranial nerves, these are entering into the neck through jugular foramen. ठीक है। अब 9th, 10th और 11th होगी, 12th कहाँ से आएगी? हमने देखा दिस एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम। अब यहाँ पे एक कैनाल होता है, एक ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लॉसल कैनाल। ठीक है। नियर द एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम one opening is there, these openings are there on either side, these are called hypoglossal canal. इस hypoglossal canal से क्या पास होगा? hypoglossal canal से hypoglossal nerve. अब hypoglossal nerve 9, 10th and 11th cranial nerve ये कहाँ से आ रही है? ब्रेन स्टेम से। क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन स्टेम होगा, ब्रेन स्टेम से प्लस 10th, 11th एंड 12th क्रेनियल नर्व। 9, 10th एंड 11th कहाँ से आएगी? अब ये हाइपोग्लॉसल कैनाल देखते हैं, उसके बाद नर्व्स देखेंगे। तो इंटरनल जुगुलर वेन, सी यू हैव स्टडीड दी ड्यूरल venous sinuses, transverse sinus continue as sigmoid sinus and the sigmoid sinus drains out as internal jugular vein into the right clavian subclavian veins. ठीक है। पहले sinus drains out into the neck first as a internal jugular vein. This internal jugular vein runs
all the way along downwards towards the subclavian veins. ठीक है, internal jugular vein drains into the vein. Again वही subclavian vein, थ्रू जुगुलर फोरामेन, इंटरनल जुगुलर क्लेविज का सारी ट्रिब्यूटरीज है. कौन सी है? फेरेंजियल एंड मिडल थायराइड. ठीक है, और ये होगी ऑक्सीपिटल. दिस वन इज कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, फेशियल याद रह सकती है, लिंगुअल रह सकती है, सुपीरियर थायराइड हो सकती है, ऑक्सीपिटल भी हो सकती है, फेरेंजियल भी, जैसे जैसे हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड है. दिस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, अब इनके साथ में एक छोटी सी यहाँ पे नर्व दिख रही है आपको. नर्व में हमने कौन सी स्पाइनल एक्सेसरी देखते हैं, जुगुलर फोरामेन से निकली एंड ट्रायंगल. दैट इज स्पाइनल एक्सेसरी नर्व. इट इज द कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल. ठीक है, तो उसे पोस्टीरियर ट्रायंगल में आना पड़ेगा. इट्स नर्व रन्स डाउनवर्ड. Accessory now, it is seen in the carotid triangle, then it disappears under the sternocleidomastoid muscle and then enters into the posterior triangle. पहले क्या हो रहा है, इंटरनल जुगुलर से स्पाइनल एक्सेसरी नर्व आ रही है नेक में, देन इट रन्स बैक, it runs downward laterally, then it disappears under the cover of sternocleidomastoid muscle and then enters into the posterior triangle. So this small part of spinal accessory nerve is seen in the carotid triangle. Then 10th ka, you know, the 10th cranial nerve along with the internal jugular vein, internal carotid artery in the upper part and common carotid sheath. ठीक है, this one is 10. Now first get orient yourself to this diagram. ये mastoid process है and this is thyroid cartilage. ठीक है, ठीक है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऊपर जा रही है कैरोटिड किनाल की तरफ. देन दिस इज कट पार्ट ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन. ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेटरली क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन. इन दोनों के बीच में क्या, कौन सी नर्व है, वेगस नर्व. ठीक है, इन दोनों के बीच में दिस नर्व इज वेगस नर्व. सो दिस इंटरनल जुगुलर, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड एंड वेगस, दे आर एनक्लोज्ड इन अ कैरोटिड sheath in the carotid triangle. ठीक है, तो ये देखो वेगस नाव, ये जुगुलर फोरामेन से निकली, देन इट रन्स वर्टिकल, इट एंटर्स इनटू द थोरैक्स. इट हैज वेग नर्व सप्लाई. वेगस नाव का नर्व सप्लाई कैसे होता है, वेग होता है, वो भी हम पढ़ेंगे. नाउ दिस वेगस नाव गिव्स वेरियस ब्रांचेस इन द नेक, अमंग्स विच वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास, दैट इज ब्रांच. जब डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में हमने देखा था फेरेंजियल ब्रांच. नाउ दिस ब्रांच इज सुपरेगी. Now the superior laryngeal nerve and inferior laryngeal nerve dividing into, runs the larynx and dividing into. Now see here, this internal laryngeal nerve, it is piercing the thyroid membrane, internal thyroid membrane, and supplying the internal of larynx. Internal laryngeal nerve किसे supply करेगी, internals of larynx, cartilage and thyroid cartilage. This muscle is external. It is external muscle of larynx. क्रिकोथायरॉइड होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, हाँ, में टेंशन होता है, किसकी वजह से, क्रिकोथायरॉइड मसल की वजह से. ठीक है, तो वोकल कॉर्ड किसके लिए होते हैं, स्पीच के लिए होते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फोनेशन, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच. ठीक है, होगा जो वोकल कॉर्ड का टेंशन था वो नहीं रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस ऑफ वॉइस. ठीक है, क्रिकोथायरॉइड मसल maintains the tension of vocal cord which is responsible for the production of voice. अगर क्रिकोथायरॉइड मसल पैरालाइज होगी तो टेंशन भी नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा तो देयर विल बी वीकनेस ऑफ वॉइस. अब ठीक है, वीकनेस ऑफ वॉइस. क्रिकोथायरॉइड मसल पैरालाइज क्यों होगी, जब एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व की इंजुरी होगी. अब एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व की इंजुरी कौन सी वजह से हो सकती है, उसमें से एक वजह क्या होती है, yes, इसमें से एक वजह क्या होती है, दिस एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व. नाउ सी दिस डायग्राम, सी दिस इज कॉमन कैरोटिड बाइफर्केटिंग इनटू, दिस इज इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की हमने देखी थी पहली ब्रांच कौन सी थी, सुपीरियर थायराइड, रनिंग टूवर्ड्स द थायराइड. ठीक है, रनिंग डाउनवर्ड फॉरवर्ड टूवर्ड्स द थायराइड ग्लैंड. तो ये जो थायराइड सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, इसी के साथ ये दिस एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व रन करती है. ठीक है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व थायराइड. नाउ सी हियर, ये क्या है,
superior laryngeal nerve dividing into internal and external laryngeal nerve. This one is internal piercing the thyroid membrane, and external it is supplying this external laryngeal nerve supplying the cricothyroid muscle, and this external laryngeal nerve it is running along with the superior thyroid artery. So now if during the thyroidectomy, removal of thyroid, what we have to do, what precaution we have to take, जब हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं उसे हमें लाइगेट करना होता है टू प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लड लॉस. तो जब हम थायराइडेक्टोमी करेंगे उस वक्त जब सुपीरियर थायराइड आर्ट करेंगे तो बाय मिस्टेक इफ दिस एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व ऑल्सो गेट कॉट, ठीक है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व भी अगर लाइगेशन के वक्त इंजर्ड होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रोथायरॉइड मसल पैरालाइज होगी, क्रोथायरॉइड मसल पैरालाइज होगी तो वोकल कॉर्ड्स. तो हमें ये प्रिकॉशन लेनी है, ये एनाटमी हमें ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ डे 12th पे. ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम में होगा स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला कंटिन्यूअस, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. दिस बेस ऑफ स्कल ये क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. बेस ऑफ दिस ओपनिंग इज कैरोटिड फोरामेन मैग्नम, ठीक है. फोराम दिस मेडुला कंटिन्यूअल ऑफ फोरामेन सी नर्व निकल रही है बाहर फ्रॉम द ब्रेन स्टेम विच नर्व इज पासिंग इन द हाइपोग्लॉसल नर्व. सी दिस फॉरवर्ड टूवर्ड्स द टंग, हाइपोग्लॉटस सब तरफ जाएगी, ठीक है. ये देखा था हमने. इट गिव्स दिस हाइपोग्लॉसल सम डिसेंडिंग फाइबर्स. हाइपोग्लॉसल नर्व गिव्स सम डिसेंडिंग फाइबर्स विच अलॉन्ग विद दिस C1. ये देखा था यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होगा, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकल रही है. पहली होगी C2 एंड C3. तो ये C1 के दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, लूप ऑफ, ठीक है. तो इसे देखते हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व अलॉन्ग विथ और C3 के फाइबर्स इंफीरियर रूट, और ये सब मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, लूप ऑफ अंसा, ठीक है. तो ये अंसा सर्वाइकैलिस हो गया. ये अंसा में ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी, ये होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. तो ये किस में होते हैं, कैरोटिड शीथ से एनक्लोज होते हैं, कवर्ड होते हैं. तो ये जो एंटीकैमिकल एंटरिंग इनटू द नेक, फर्स्ट इज रन डाउनवर्ड फॉरवर्ड, देन इट रन्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड टू, ठीक है. तो ये होगी हमारी हाइपोग्लॉसल स्मॉल, ठीक है. ये वाली डायग्राम में फिर से देखते हैं हम. ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये मैस्टोइड प्रोसेस होगी, एक्सटर्नल कॉलम होगा, ठीक है. जुगुलर फोरामेन होगा. पहले हम क्या देख रहे थे, हाइपोग्लॉसल नर्व. हाइपोग्लॉसल नर्व यहाँ से आ रही है, देखो, थ्रू हाइपोग्लॉसल कैनाल, देन इट इज रनिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द टंग, ठीक है. सो नियर द हायोइड बोन, this hypoglossal artery, the hyoid bone crosses the loop of lingual artery. अब ये ध्यान में कैसे रखेंगे, hypoglossal it is a nerve of tongue, lingual artery it is a artery of tongue. तो ये जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ये किसके होंगे, टंग के lingual artery. Then it runs forward over the hyoglossus muscle along with the lingual artery and then supplies the tongue, ठीक है. ये हमारे कैरोटिड ट्रायंगल में नहीं आएगा, पर जब आप सबमैंडिबुलर रीजन रिवाइज करोगे तो ये आप इससे कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है. दिस स्मॉल पार्ट लिंगुअल आर्टरी ओवर हियर इट इज प्रेजेंट इन दी कैरोटिड. हमें जो लिंगुअल आर्टरी को क्रॉस करता है ट्रायंगल. तो कौन सी नर्व होगी, स्पाइनल एक्सेसरी देखिए, ठीक है. कैरोटिड ट्रायंगल के कौन से कंटेंट्स हमने देखे अब तक, कॉमन कैरोटिड साइनस, कैरोटिड बॉडी होगी, इंटरनल जुगुलर वेन होगी, लास्ट 3 क्रेनियल नर्व्स, वेन posterior to the carotid sheath, that is cervical sympathetic chain. एक डायग्राम ने हमने देखा था, अगर अभी समझ पाओ तो पीछे यहाँ पे आपको दिख रहा है the swellings, ये एक swelling chain से हम कहेंगे cervical sympathetic chain, ठीक है. इसमें हमने the contents of carotid sheath, ठीक है. सो दिस कैरोटिड शीथ इट इज नथिंग बट द कंडेंसेशन ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया विच एनक्लोजेस द जुगुलर वेन लेटरली,
common carotid artery in the lower part and internal carotid artery in the upper part medially, और इन दोनों के बीच, ठीक है, इन बिटवीन एंड बिहाइंड दिस टू स्ट्रक्चर इज वेगस नर्व. अब हम इनका, ठीक है, दिस एंटीरियर पार्ट, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज लेटरल पार्ट एंड दिस इज मीडियल पार्ट. तो मीडियल नीचे हम वेगस, ये हो गई, ये जो आउटलाइन दिख रही है ब्लैक में, दिस इज कैरोटिड शीथ. दिस इज सेंसेशन ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ होता है, जो स्ट्रक्चर को वो एनक्लोज करेगी, ठीक है, उसी के साथ उसका एक्सटेंड भी होगा. तो ये जो हमारे जो स्ट्रक्चर कैरोटिड शीथ के अंदर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बेस ऑफ स्कल से आ रहे हैं. जो ओपनिंग्स होती है बेस ऑफ स्कल में वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है. और कहाँ पर जाके ये एंड हो रहा है, रूट ऑफ नेक, दी बेस ऑफ स्कल एनक्लोजेस, इट ब्लेंड्स विद दी आर्च ऑफ एओर्टा. ठीक है, इतना सफिशिएंट है. Then you know that lymphatic system, it is auxiliary. Enumerate them once again. We'll enumerate them. So see, first is carotid artery. Carotid arteries कौन सी होती है? Common carotid artery, internal carotid artery, and the external carotid artery with its branches. Then at the bifurcation of common carotid artery, behind carotid body, then spinal accessory nerve, hypoglossal wall, sympathetic chain which is present in the posterior wall of carotid sheath, which is related to the posterior wall of carotid sheath. Then carotid sheath which encloses internal carotid artery in the upper part, laterally internal jugular vein present in between and behind the structures, which present along the internal jugular vein. Okay, so this is all triangle, gastric and stylohyoid muscle. And its roof is formed by skin, superficial fascia and platysma muscle, investing layer of deep cervical fascia. By floor is formed thyroglossus, thyrohyoid membrane, middle and inferior constructs. This forms the floor of carotid triangle and then contains, ठीक है, and related clinical aspect we have studied. जहाँ पे आया था, जहाँ पे ठीक, हाँ, जहाँ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट था वहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को, राइट. सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास विल स्टडी दी सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल.